Assalamu alaikum students. I hope you all are fine with the grace of Allah. Now today we start our chapter number 4 of chemistry, periodicity of elements. Now classification of element. In the early era of science, only few elements were known, but new elements were being discovered. Hence, in order to facilitate their study, need arose for a framework in which the elements may be arranged or classified. As more element was discovered, the study of elements and their properties and also their classification became very alive in the scientific world. So many scientists would try to study the characters of elements, were known and made an attempt to classify according to their character. Previously, the classification was based on the atomic masses of elements because it was thought that the properties of element depended upon its atomic mass. But recently, a complete classification has been made which is based on atomic number of the elements instead of their atomic masses. Now we can trace the development of classification of elements as follows. So student, the method of arranging elements with similar properties in the same group and separating them from elements with different properties is called classification of element. Now students, what is the purpose of classification? The main purpose of classification is to make the study of element easier, and it enables the chemist to understand the properties of the element. Dobrunger's law of trade. In the 19th century, there is a German scientist named Dobrunger who proposed a law. He classified elements in the increasing order of their atomic masses into groups of 3 called trades. In each trade, the atomic mass of the middle element was approximately equal to the average atomic mass of the other 2 elements. Now, in the 19th century, the scientist named John Dobrunger noticed that of 3 elements with very similar properties, that is calcium, strontium and barium, that the atomic mass of the middle element, that is strontium, is almost the arithmetic mean of the other 2. This led him to call this group of 3 elements a trade and proposed the law or rule of trade, which states that central atom of each of trade sets had an atomic mass almost equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the other 2 elements. For example, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉबिंगर. उन्होंने एटम्स को ऐसे अरेंज किया जिनकी उन एलिमेंट्स को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम. इन्होंने देखा जो एटॉमिक मास था फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का वो अर्थमेटिक मीन था मिडल ऑफ द एलिमेंट जो था स्ट्रोंटियम. नाउ वी विल टेक अ एग्जांपल. So students, when we take the example of 3 elements, that is sodium, lithium, sodium and potassium, the atomic mass of first and the third element give the atomic mass of the middle element, that is sodium. जब हमने लिथियम के एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन निकाला तो उसने हमको मिडिल वाला एलिमेंट जो सोडियम था उसके बराबर उसका एटॉमिक मास दिया. ये लॉ
प्रपोज किया था डॉबनर्स ने, जिसको हम कहते हैं रूल और लॉ ऑफ ट्रेड. बट this law or rule cannot be extended to the classification of the all elements, because it is true only in the cases of very few elements. क्योंकि उस वक्त बहुत कम एलिमेंट्स रिकॉग्नाइज थे, तो ये जब न्यू एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए, डिस्कवर्ड हुए, तो ये सब के ऊपर ये लॉ नहीं फिट बैठ रहा था. सो इट वॉज देन रिजेक्टेड. Students, after Dobbiners, there is a scientist named John Newland, an industrial chemist, proposed his law of octaves. According to him, if elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the eighth element starting from a given one have similar properties as the first one. अकॉर्डिंग टू हिम कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से, यानी इंक्रीजिंग हो रहे उनके एटॉमिक मासेस, तो जो एथ एलिमेंट होगा स्टार्टिंग वन से, जो फर्स्ट वाले से जो एथ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास लीथियम फर्स्ट एलिमेंट है इन लॉ ऑफ ऑक्टेव ऑफ न्यूलैंड. सो जो एलिमेंट है लीथियम, उसका जो एथ एलिमेंट है वो है सोडियम. तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो सेम होंगी. इसी तरीके से अगर हमारे पास सेकंड एलिमेंट है ब्रिलियम, तो इससे जो एथ एलिमेंट है मैग्नीशियम, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी. यानी जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ आफ्टर एथ इंटरवल अब प्रॉपर्टीज़ अपनी रिपीट करते हैं. This arrangement of elements for the first time brought to the light existence of periodicity, that is, recurrence of chemical and physical properties at regular interval, and provided a great idea toward the development of modern periodic table. But this law failed because it held good for the first 16th element but did not work after 17th element. Moreover, hydrogen was not included in his sequence. ये जो लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसके जो शुरू के 16 एलिमेंट्स है ये उस पर वर्क करता था, बट आफ्टर 17th एलिमेंट इट डज नॉट वर्क. और इसकी जो एक ड्रॉबैक था, डिफेक्ट था, कि हाइड्रोजन को इसके सीक्वेंस में इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, और ना ही नोबल गैसेस इंक्लूडेड थी इस लॉ ऑफ ऑक्टेव में. लेकिन इन्होंने लॉ ने इसका एक एडवांटेज ये था कि ऑन द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप, इन्होंने जो लॉ हमें प्रोवाइड किया था इसकी वजह से हमने एलिमेंट्स को ग्रुप में रखना शुरू कर दिया. और इट प्रोवाइड अ वाइडर स्कोप टू अरेंज ऑल एलिमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म, यानी एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव, ही गिव द फर्स्ट आइडिया. Lothar-Meyer atomic volume curve or Lothar-Meyer's classification. Julius Lothar-Meyer, a German scientist, in December 1869 published a periodic table in which the known 56 elements were arranged on the basis of their atomic masses in 9 vertical columns or group. लॉदर-मेयर ने क्या किया था, 1869 के अंदर जो 56 एलिमेंट्स थे, जिस वक्त जो 56 एलिमेंट दरियाफ्त हो गए थे, डिस्कवर्ड हो गए थे, उनको अरेंज किया उनके अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस 9 वर्टिकल कॉलम या ग्रुप्स के अंदर. व्हाट डिड ही डू? On the basis of his observation, Lothar-Meyer proposed that the physical properties of the element are a periodic function of their atomic masses. By 1868, Lothar-Meyer had developed a table of elements that closely resembles the modern periodic table. However, his work was not published until after the work of Dmitri Mendeleev.
What did he do, students? लॉदरमियर ने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ बनाया किसके दरमियान, एटॉमिक मासेस और उनके एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान, और उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों को हम ऑब्ज़र्व करें, इनकी ग्राफिंग को, तो एटॉमिक मासेस जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो वो एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्राफ पे एक ही जगह आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम, बेरिलियम, ये पोटेशियम, ये एक जगह पे आ रहे हैं, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट ग्राफ पे एक जगह उसको ऑब्जर्व हुए। He plotted a graph between atomic volumes against their increasing atomic masses and observed that the elements with similar properties occupy similarly position on the respective curve. Lothermeyer calculated the atomic volume of elements. The atomic volume of an element is the volume which would be occupied by 1 gram atomic mass or 1 mole of atoms of element if they are solid. He also find out the atomic volume of an atom by dividing gram atomic weight divided by their density. In order to emphasize the concept of periodicity, he plotted a graph between atomic volume of element against their increasing atomic masses. Observe that the element with similar properties occupy similar position on the curve. For example, the highly reactive alkali metals, that is lithium, sodium, potassium, and so on, the peak occupy the peaks there by showing that these elements have the largest atomic volume. The regular spacing of the highest point confirms the idea of periodicity suggested by Newland. Mendeleev's periodic table or Mendeleev's classification. In March 1869, Dmitri Mendeleev, a Russian chemist, arranged the element in order of increasing atomic mass by placing the element with similar chemical properties vertically beneath each other. By doing so, he observed that the properties of the elements with slight modification repeated themselves at intervals. So he put forward his law, which states that the physical and chemical properties of element are a periodic function of their atomic weight. 1869 में मैंडलीव्स ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग असेंडिंगली एटॉमिक मासेस से, तो इन्होंने क्या देखा, What did he observe, students? He observed कि जब एलिमेंट्स को हम किस पीरियोडिक टेबल में टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में लिख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स जो हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो थोड़ी सी मॉडिफाइड होकर रिपीट हो रही हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया अकॉर्डिंग फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की होती है कि वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उनके एटॉमिक मासेस का। क्यों होता है? उनके एटॉमिक मासेस की वजह से उनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनका पीरियोडिक फंक्शन होता है। द पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड बाय मेंडलीव consisted of 8 vertical columns called groups, that is group 1 to 8, and horizontal rows called series. Nowadays these series are called periods and the table is called Mendeleev periodic table. Now students, this is the Mendeleev's periodic table. The horizontal rows called series and the vertical columns are called group, which are 1 to 8. You have seen, student, spaces were left for the unknown element with atomic masses 44, 68, 72 and 100. मेंडलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर एम्प्टी स्पेसेस भी छोड़ी थी ताकि कि जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं तो वो जब जाकर
एब्जॉर्ब हो जाए तो इनको उनकी जगहों पे रख दिया जाए। So the students, the characteristics of the Mendeleev's periodic table, elements in the column have similar properties. Vacant spaces were left for the elements not discovered until then. He proposed their name as Ega Aluminium and many others. The group number indicates the highest last shell that can be attained by the element of that group. Advantages of Mendeleev periodic table. Mendeleev predicted the discovery of other elements and left space for these new elements and named them Eka silicon, germanium, Eka aluminium, gallium and Eka boron, scandium. Thus there was not disturbance in the periodic table. He pointed out that some of the then current atomic weights were incorrect. He provided for variance from atomic weight order. सबसे जो बड़ा एडवांटेज था पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के कि इन्होंने एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी थी जो उन एलिमेंट्स के लिए जो अब तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, और उनको उन्होंने उसका नाम भी दे दिया था, जैसे ईका सिलिकॉन जिसको हमने जर्मेनियम का नाम दिया है, ईका एल्युमिनियम एंड ईका बोरॉन। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स का ये भी बोला था कि उनके एटॉमिक वेट सही नहीं है, उन्होंने उनको एटॉमिक वेट को सही करके इस एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में रखा था। एक और जो एडवांटेजेस हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कि इन्होंने हेल्प किया था इन करेक्टिंग मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। इट हेल्प इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। इट फोर्सफुली प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट था पीरियोडिसिटी का कि जब कोई हम एलिमेंट्स को किसी टेबुलर फॉर्म में पीरियोडिक टेबल में रखते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को वो रिपीट करते हैं, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। वो उन्होंने प्रूव किया था और बहुत उन्होंने सिस्टमैटिक स्टडीज़ एलिमेंट की आसान कर दी थी। और एक और क्या था, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स फर्स्ट मेड पॉसिबल and the physical and chemical properties of Eka boron, Eka aluminium and Eka silicon were predicted by Mendeleev। उन्होंने उसकी विंस प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी जो उस वक्त तक एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। This helped in their discovery. Their properties are remarkably same as were predicted by Mendeleev। वो जो एलिमेंट्स जिनके नाम बताए थे उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी मेंडलीव ने, जब वो बाद में डिस्कवर्ड हो गए स्टूडेंट्स, तो रिमार्केबली उनकी जो प्रिडिक्शन थी वो वही सही साबित हुई कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही थी जो मेंडलीव ने बताई थी। Disadvantages: there was no place for the isotopes of various elements. His table did not include any of the noble gases which had been discovered। अच्छा, एलिमेंट्स जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट्स? इनकी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि उन्होंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी, कोई प्लेस नहीं रखी थी आइसोटोप्स के लिए जो वेरियस एलिमेंट के हैं, जो आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। और दूसरे डिफेक्ट ये था, डिसएडवांटेज ये था कि इनका टेबल में नोबल गैसेस नहीं रखी गई थी, नई एलिमेंट्स जो उस वक्त तक नोबल गैसेस क्योंकि डिस्कवर्ड नहीं हुए थे तो ना इन्होंने उसके लिए कोई जगह छोड़ी थी और ना ही उनको रखा गया था। जाहिर सी बात है, जैसे डिस्कवर्ड ही नहीं हुई तो उनको वो किस तरीके से उस पीरियोडिक टेबल में रखते, लेकिन जैसे उन्होंने एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन की प्रिडिक्शन की थी, लेकिन वो नोबल गैसेस की प्रिडिक्शन नहीं दे पाए थे। सो इट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, इनकी एक और डिफेक्ट जो था और डिसएडवांटेज जो था पीरियोडिक टेबल का, तो एक ये था कि इन्होंने 3 पेयर्स ऑफ एलिमेंट दैट इज़
elements of higher atomic masses placed before the element of lower atomic masses, यानी वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक वेट ज़्यादा थे इन्होंने उनको कम एलिमेंट जिनके एटॉमिक मासेस कम थे उनसे पहले रख दिया था। जैसे आर्गॉन का एटॉमिक मास 40 है, उन्होंने उसको पहले रख दिया था पोटेशियम से जिसका एटॉमिक मास था 39। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है हमारे पास 59.9 और उन्होंने उसको पहले रख दिया था किसके, निकल से, और निकल का एटॉमिक वेट है हमारे पास 58.6। एक और डिसिमिलैरिटी है इनकी, डिसएडवांटेज है मेंडलीव का, वो ये कि वो ग्रुप जैसे अल्काई मेटल्स वर प्लेस इन द कॉन्केज मेटल्स, उन्होंने अल्काई मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को साथ रख दिए कॉन्केज एलिमेंट मेटल्स के साथ, जैसे आर्गोनियम, कॉपर, इनके साथ इनको मिक्स करके रख दिया था अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। वो एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी, सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, उसको भी मेंडलीव ने डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया था। यानी जैसे हमारे पास बैरियम एंड लेड जो है जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, उन्होंने इनको सेपरेट ग्रुप्स में रख दिया था। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने से हमें आइडिया जो था एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो नहीं मिलता, ना ही मतलब इनका जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है इट डिड नॉट गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, we study about modern periodic table. The modern periodic table is the result of discovery of atomic number by Moseley in 1914. The arrangement of elements on the basis of their atomic masses left anomalously in the position of different elements in the periodic table. However, the existence of isotopes showed that the atomic mass of an element is not the fundamental property of an element. क्योंकि इससे पहले जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा रहा था उनके एटॉमिक मासेस के बेस पे से किया जा रहा था, लेकिन जो आइसोटोप्स थे उनसे हमें पता चला कि जो एटॉमिक मास है वो कोई किसी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो जब मॉसले ने 1914 के अंदर एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया और कहा बताया कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है, इसके बाद बोहर और वेर्नर ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और वो कहता है कि द फिजिकल एंड द chemical properties of all elements are the periodic function of their atomic number। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की या और जो पीरियोडिक टेबल दिया था, उन्होंने फिज़िकल और प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो एलिमेंट्स की कहा था कि वो होती हैं पीरियोडिक फंक्शन उनके एटॉमिक नंबर का। क्या कहा था? उनके एटॉमिक नंबर का, यानी किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होता है वो शो करता है उसकी एटॉमिक फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, या एटॉमिक नंबर की वजह से उसकी जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो फंडामेंटल्स होती हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कैसे अरेंज किया था? इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर को अरेंज किया था एलिमेंट्स के। द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। जो एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी वो एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रही थी। द रियल बेस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन ग्रुप इज़ ड्यू टू द रिकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। यानी जो पीरियोडिसिटी थी और प्रॉपर्टीज़ थी किसी भी एलिमेंट की ग्रुप के अंदर वो उसकी वैलेंस शेल की वजह से थी, या उसके बाद जो वैलेंस शेल होते हैं उस एटम के अंदर उसकी वजह से थी। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल रॉज। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं जिसको हम कहते हैं पीरियड, और 16 वर्टिकल कॉलम है जिसको हम कहते हैं ग्रुप। Students, look at this picture. These are the vertical columns and the vertical columns are called groups. Now students, look at this picture. The horizontal rows in the periodic table is called periods.
Student, this is the modern periodic table. The blue color represents the metals in the periodic table. The orange color represents the metalloids in the periodic table, and green color represent the non-metals in the periodic tables. Now students, you have seen two separate lines under the periodic table. These are lanthanides and actinides. They are radioactive elements in this group. Now students, the periodic table is further have S block, P block, D block and F block. This is due to the electronic configuration of the elements. We can study further in the chapter. Periodic table. A table of elements obtained by arranging them in order of their increasing atomic number is called periodic table. Periodic table क्या है स्टूडेंट्स? वो टेबल जो एलिमेंट्स का हमें मिलता है by arranging them in order of their increasing atomic number, यानी ऐसे अरेंज कर दें उन एलिमेंट्स के से कि एलिमेंट्स की जो एटॉमिक नंबर हैं वो इंक्रीज हो रहा हो, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल. नाउ व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी? द रिपीटेशन ऑफ similar properties of elements after a regular interval in periodic table is called periodicity. What is the periodicity? वो properties जो repeat होती हैं element की एक ख़ास वफ़े के बाद, गैप के बाद periodic table के अंदर, हम उसको कहते हैं periodicity. Okay students, what is periodicity? जो रिपीटेशन होती है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की एलिमेंट्स की एक ख़ास वफ़े के बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी. नाउ स्टूडेंट्स, पीरियड्स. एज आई एक्सप्लेन यू, द हॉरिजॉन्टल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स. ऑल ऑफ द एलिमेंट्स in a period have the same number of atomic orbital, यानी जो पीरियड है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. Every element in the top row, the first period, has one orbital for its electron, and all the elements in the second row, the second period, have two orbital for their electron. It goes down the periodic table like that. जैसे पीरियड नंबर 1 है तो पीरियड नंबर 1 के अंदर जो एटम है उसके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिट होंगे कितने होंगे? 1 होंगे. अब जैसे सेकंड पीरियड है तो सेकंड पीरियड के अंदर जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 2 होंगे. और इसी तरह अगर 3 ऑर्बिट पीरियड है तो 3 पीरियड के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे एलिमेंट के कितने होंगे? 3 होंगे, एंड सो ऑन. Now students, element of the first period. The first period is the shortest period. The first period corresponding to n is equal to 1, and it is unique because it contains only 2 elements. There can accommodate only 2 electrons, in which 1 and 2 electrons are present in the first energy level. The first atomic period contain hydrogen 1s and helium 1s, यानी 1 shell in the atomic orbitals. Students, in first periodic table हमारे पास 2 elements हैं. One is hydrogen and second one is helium. ये सबसे छोटा पीरियड है हमारे पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमारे 2 एटम्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? 1 and 2. और इनका जो शेल होगा वो क्या होगा? एनर्जी लेवल क्या होगा? 1. एक 1 शेल है और उस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं द फर्स्ट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड के शेल. उसको हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट? के शेल. व्हाट वी नेम गिवन टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल? वी कॉल इट के शेल. Now the second period, it contains 8 electrons from lithium to neon, because at the most there are 8 electrons in the second level. They signify the filling up of
L shell and M shell respectively. सेकेंड पीरियड के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट हैं जो स्टार्ट होते हैं लिथियम से और एंड होते हैं नियॉन पे। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके सेकेंड लेवल के अंदर, क्योंकि सेकेंड लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट? 8 होते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं सेकेंड लेवल के अंदर। तो ये कौन से इनके ऑर्बिटल्स भरते हैं? एल शेल एंड एम शेल। दीज द एलिमेंट्स ऑफ दीज period fill the shell of L shell and M shell, 2 shells. As I explain you that the number of the periods show the atomic orbital of the atom. The third period. This period contain 8 elements. They signify the L shell and M shell respectively. It start from sodium and end on argon. This period is also called short period because it contains only 8 elements and the electron fill the L shell and M shell. The fourth period is composed by 18 elements from potassium to krypton. This period contains 10 elements from scandium to xenium, so corresponding to the filling of sublevel 3D. In this period, electron fill M shell and N shell. And this period contains 18 elements. Element of fifth period or the fifth period. Each of this period contain 18 elements. It start from rubidium and end at xenium. The fifth period. This period contain 18 elements. It start from rubidium and end at xenium. In this period, the electrons fill M shell and N shell. The sixth period. The sixth period is also called the longest period. It contains 32 elements. It starts from cesium and ends with rheon. Beside 14 elements, it called lanthanides are placed at the bottom of periodic table. आपने पीरियोडिक टेबल के नीचे स्टूडेंट्स देखा होगा कि 2 और सेपरेट रॉज हैं और उनको हम कहते हैं, एक रॉ को लैंथेनाइड्स जो बिलोंग करती हैं 6th पीरियड को। 7th पीरियड. द 7th पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द इनकम्प्लीट पीरियड बिकॉज द एलिमेंट्स आर डिस्कवरिंग, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड. It starts with francium and this end is not known. This period is incomplete as to date. About 109 elements have been discovered. This period also includes a group of 14 elements starting from actinium. They are placed at the bottom of the table. मैंने स्टूडेंट्स आपको जैसे पहले बताया कि पीरियोडिक टेबल के नीचे आपको 2 सेपरेट रॉज दिखेंगी। एक जो रॉ है वो बिलोंग करती है 6 पीरियड से और जो सेकंड रॉ है जिसको हम कहते हैं 7 पीरियड से बिलोंग करती है और वो स्टार्ट होती है एक्टिनियम से एंड दे आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स. नाउ स्टूडेंट्स, ग्रुप. द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप. Basically, they are 8 groups, but each group is further subdivided into 2 named A and B subgroup. The element of subgroup A is called representative elements and the elements of subgroup B are called transition element. The elements of B group is called transition element because these elements change their properties to the other elements.
Elements of a group have similar valency shell configuration, hence they have similar properties. यानी जो एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनकी जो वैलेंसी होगी वो एक जैसी होगी उनके इलेक्ट्रॉन्स की, और इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं ग्रुप के अंदर. यानी एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. The elements of a group have similar valence shell configuration, hence have similar properties. The group number of elements indicate the total number of electron in the valence shell of that element. यानी जो ग्रुप नंबर होता है वो हमें बताता है कि उस एटम के उस एलिमेंट के एटम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं. For example, if we took the example of group 1, तो ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 1. ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 1. That's why they have similar properties. 1a. The group 1a is called the alkali metals or lithium family. They contain lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Valence electron. Their valence electron contain only 1 electron. जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप नंबर है वो हमें बताता है कि उस एलिमेंट के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. अब हमारे पास ग्रुप नंबर क्या है 1, तो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1. आयन फॉर्मेशन. ऑन रिएक्शन दे लूज दिस इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है. दैट्स वाई ये जो एक इलेक्ट्रॉन हैं वे किसी दूसरे एलिमेंट के एटम को दे देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं. दैट्स वाई दे आर वेरी हाई रिएक्टिव. नेचर क्या होती है इन एलिमेंट्स की? दे आर कॉल्ड अल्कलाई मेटल बिकॉज दे फॉर्म वाटर सॉल्यूबल बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एंड फ्रेनियम इज़ रेडियो एक्टिव. यानी फ्रेंकियम जो एलिमेंट है इस लिथियम फैमिली में वो वेरी रिएक्टिव है, रेडियो एक्टिव है. इट इज़ सिल्वरी सॉलिड सॉफ्ट कंपेयर टू द अदर मेटल. यानी सिल्वरी कलर के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं थोड़े से दूसरे मेटल्स के हिसाब से. लो डेंसिटी होती है एंड द लो मेल्टिंग पॉइंट. यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और लो डेंसिटी होती है. दे आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज they have a valence 1 electron, so they lose the electron, so they are very reactive. इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है एज यू गो डाउन द फैमिली. और जो फ्रेंकियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है लिथियम से, और फ्रेंकियम जो है वो रेडियो एक्टिव है. हाइड्रोजन जो है वो कोई मेटल नहीं है, लेकिन इसको इस ग्रुप में रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर 1 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. ग्रुप 2a द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और बेरिलियम फैमिली. दिस ग्रुप कंटेन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, barium and radium. Their valence shell contain 2 electrons. They all are metals. 2 electron in outer shell and they are very reactive. On the reaction they lose 2 electron and form divalent positive ion. क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं. इस ग्रुप के अंदर जो रेडियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. दे हैव स्मॉलर एटॉमिक, आयोनिक एंड एटॉमिक वॉल्यूम डाउन द ग्रुप. दे डू नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड इन मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज.
Melting point of these elements are bit harder, having higher melting and boiling point than the alkali metal. यानी इन elements की जो elements टू ग्रुप में होते हैं वो उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है अल्कलाई मेटल से, और इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है और आयनिक रेडियाई और एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है वो कोई रेगुलर नहीं होता और ये स्मॉलर होता है डाउन द ग्रुप. 3A group. 3A, the boron family. This group contain aluminium, gallium, indium and helium elements in this group. Their valence shell contain 3 electrons. They form trivalent positive ion because they have 3 valence electron in their valence shell, so they lose these 3 electron and form trivalent positive ion. Boron is metallite. Except boron, they are highly electropositive elements. The metallic character increases down the group due to increase in atomic volume. Metal except for boron which is a metallite, यानी सारे इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल हैं एक्सेप्ट बोरोन के, वो एक क्या है, मेटलाइट है. These elements are used in a variety of product, यानी ये जो एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप के वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने में काम आते हैं. दे आर रिएक्टिव बिकॉज दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स. जो रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज यू गो डाउन द ग्रुप, यानी अब जैसे जैसे ग्रुप डाउन द ग्रुप जाएंगे इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. और द थैलियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन बोरोन, जो यानी जो लास्ट में हमारे पास एलिमेंट है इस ग्रुप के वो थैलियम है, वो मोर रिएक्टिव है दैन बोरोन जो स्टार्टिंग के अंदर है. एज द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द फैमिली. कार्बन फैमिली 4A group. The element of this group are carbon, silicon, germanium, tin and lead. Their valence shell contain 4 electrons. Carbon, silicon and germanium form covalent compound, whereas tin and lead showed variable valence of 2 and 4. यानी जो इस एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो कोवलेंट बाउंड बनाते हैं, यानी ये जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर वो शेयर करते हैं. तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है स्टूडेंट? कोवलेंट बाउंड. सो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम फॉर्म कोवलेंट बाउंड, वेयर एज टिन एंड लेड फॉर्म वेरिएबल वैलेंस. समटाइम्स दे डोनेट देयर electrons or sometimes they gain electrons, so they show variable valencies. The nature of carbon is known metal. कार्बन जो है इस फैमिली के अंदर वो नॉन मेटल है. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड्स हैं. टिन एंड लेड आर मेटल्स. कार्बन एंड टिन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलेक्ट्रोपिक फॉर्म, यानी कार्बन और जो टिन है वो अलग अलग फॉर्म्स में हमको मिलता है, कार्बन भी और टिन भी. ग्रुप 10 क्या है स्टूडेंट इसका? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज, यानी एटॉमिक रेडियाई भी इनका बढ़ता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. टू एडिशन ऑफ न्यू शेल फॉर द सेम रीज़न मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है वो बढ़ रहा है, दैट्स वाई दे इंक्रीज द डाउन द ग्रुप देयर मेटालिक कैरेक्टर. इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया नॉन मेटल है हमारे पास कार्बन, मेटलॉइड्स हैं इसके अंदर हमारे पास, और क्या है, मेटल्स भी हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, और देयर रिएक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है तमाम एलिमेंट्स की इसके अंदर. दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डायमंड इज एग्जाम्पल ऑफ कार्बन एंड टिन्स, जैसे हमारे पास टिन, कैन, और ये दो अलग अलग फॉर्म में एलेक्ट्रोपिक फॉर्म में हमें मिलते हैं. Nitrogen family 5A group. The element of this group are nitrogen, phosphorus, arsenic,
antimony, and bismuth. Their valence shell contain 5 electrons. Nitrogen has a tendency to accept 3 electrons to form nitrite ion. Phosphorus exists as P4 molecule. नाइट्रोजन जो है वो एक्सेप्ट करता है, पहले 5th ग्रुप तक जो एलिमेंट्स थे वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, लेकिन 5th ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। नेचर क्या है इन एलिमेंट्स की? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, arsenic and antimony are metallites, while bismuth is a metal. Except nitrogen, all exist in more than one allotropic form. Nitrogen exists in diatomic molecule, यानी जो नाइट्रोजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमारे फॉर्म में मिलता है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं इस फैमिली के वो डिफरेंट फॉर्म में भी मिलते हैं। दे आर, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट। सारे एलिमेंट जो हैं इस ग्रुप के वो सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पर, सिवाय नाइट्रोजन के। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एयर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं वो हमारे एयर के अंदर मौजूद हैं, और फर्टिलाइजर्स भी हैं। ऑक्सीजन फैमिली 6A ग्रुप। The elements of this group are oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Their valence shell contain 6 electrons. Oxygen and sulfur form divalent negative ion because oxygen and sulfur gain 2 electrons. That's why they form negative ion, divalent negative ion. Oxygen and sulfur are non-metal, while selenium and tellurium are metallites and polonium is a metal. All of the metals exhibit the property of allotropy. The electronegative values of these elements are very high and decrease down the group. All are, but oxygen are solid at room temperature. Rust and some acids are the example of oxygen family. Halogen family 7th A group. The elements of this group are fluorine, chlorine, bromine, iodine, and actinide. Their valence shell contains 7 electrons. They easily accept an electron to form halide ion, यानी they form electron, so they form negative ion, and क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट एस्टेनाइन विच इज़ अ मेटलाइट, ऑल अदर्स आर नॉन मेटल एंड एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी एस्टेनाइन को हटा के तमाम जो एलिमेंट्स हैं दिस फैमिली के वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होते हैं। एट रूम टेम्परेचर फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, while bromine is a liquid and iodine is a solid. Halogens are highly electronegative and their electronegative decreases down the group from fluorine to iodine. Fluorine is extremely reactive, whereas iodine is least reactive. Halogen means salt former. Noble gases 8A group. The elements of this group are non-metal. The elements of this group are helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. The elements of this group have 8 electrons in their valence shell except हीलियम, यानी हीलियम के जो एटम है उसके जो वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के उनके अंदर वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर इनर्ट बिकॉज ये इनर्ट होते हैं क्योंकि जैसी बात है स्टेबल, इनके जो आउटर शेल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो ये स्टेबल होते हैं और ये रिएक्ट नहीं करते किसी और एलिमेंट्स के साथ।
नोबल गैसेज जो थी वो मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल अपना सजेस्ट दिया था तब ये डिस्कवर्ड नहीं हुई थी. इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ फिजिकल केमिस्ट नेम्ड सर विलियम रैमजे इन 1892. Diamagnetic character. All noble gases are diamagnetic in nature, and helium is less dense than air and is used in all types of balloon. हीलियम जो है उसका वेट हवा से बहुत हल्का होता है और ये बलून के अंदर फिलअप करने के लिए करते हैं. आपने बच्चों के बलून देखे होंगे स्टूडेंट्स, वो एक उसके अंदर गैस भरते हैं तो वो जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं. क्यों? क्योंकि वो उनका वेट नहीं होता. और उसमें कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है, क्योंकि हीलियम का जो वेट होता है बहुत कम होता है. डेट्स वाई जो वो बलून्स होते हैं गैस के बलून्स वो अप इन द एयर वो जा रहे होते हैं. Helium is safer than hydrogen because hydrogen catches fire. हीलियम जो है वो सेफ़र है हाइड्रोजन से बिकॉज हाइड्रोजन में आग लग जाती है उसके एलिमेंट्स में, लेकिन हीलियम में आग नहीं लगती है ईजीली. Transition elements. The elements of 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b and 8b are called transition elements. Transition elements are classified into two types: outer transition elements and inner transition elements. The nature of transition elements are metal. They have high melting and boiling point. They have incomplete inner orbit, electronic configuration, so they have variable valencies. Because the inner orbit is incomplete, so they are found in variable valencies. Now they form coordinate covalent bond because they have inner incomplete orbit. These elements of transition in compound having characteristic colors. When the elements of transition elements form compound, they have a characteristic colors. Transition elements are from 1b to 8b group. The yellow color in the periodic table are the metals and are their ट्रांजिशन एलिमेंट्स. यानी ये जो पीरियोडिक टेबल में आपको येलो कलर फिलअप हुआ हुआ है पीरियोडिक टेबल में, ये आपको ट्रांजिशन एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है और ये सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं. ये ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो और की सूरत में पाए जाते हैं, यानी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन पाए जाते हैं. मरकरी सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के अंदर. यानी एट रूम टेम्परेचर द मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म. नाउ स्टूडेंट्स, look at the periodic table. You have clearly seen about metals, known metals and metallites. Majority of the known elements are metals. Only 17 elements are known metal and 8 elements are metallites. Metals are electropositive element, that is they lose electron to form cations. They form basic oxide. यानी जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये आराम से अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज कर देते हैं और फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड. मेटल्स आर ऑल्सो हार्ड. Hardness is another property of metal. However, there are quite a few metals which are soft. यानी जो मेटल्स होते हैं ज़्यादातर वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं. सिर्फ थोड़े से कुछ एलिमेंट्स हैं जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, लीडियम, गैलियम, सीजियम एंड पोटेशियम. दे आर सॉफ्ट while others all elements are hard. Metals have luster. This mean they are shiny. यानी जो मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं. लस्ट्रस मीन शाइनी होते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड मैनी अदर्स. ज़्यादातर जो मेटल हैं वो शाइनी होते हैं एंड द शाइनेस को हम कहते हैं लस्ट्रस. डक्टिलिटी. मेटल्स आर डक्टाइल, that is they can be drawn into thin wires. That is example
gold, copper, silver, iron and many others. यानी जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी जो मेटल्स को हम आराम से पतली वायर्स के अंदर हम ले आते हैं, और इस चीज़ को हम कहते हैं डक्टिलिटी. जब किसी मेटल को हम वायर के फॉर्म में ले आते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं डक्टिलिटी. हमारे पास एग्जांपल है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और आयरन की, और बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनमें डक्टिलिटी पाई जाती है. मेटल्स आर malleable. Malleable mean when metal hammered into thin sheet, यानी जब मेटल्स को हार्म किया जाता है, यानी उनको हम प्रेस करके थिन शीट्स के अंदर भी मेटल्स को ला सकते हैं, वो ब्रेक नहीं होते. ये मेटल जो है वो थिन शीट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं. मेटल्स आर good conductor of electricity, mean they conduct electricity. In the periodic table, elements of group 1a, 2a and all transition elements are metals. Some of the elements of group 3a, 4a, 5a and 6a are also metals. Now, known metals. Known metals are electronegative elements, that is they gain electrons to form anions. यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं, एंड कॉल्ड एनाइन. दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. ये क्या बनाते हैं? दे आर फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन्स. Known metals are usually bad conductor of heat and electricity. यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं ज़्यादातर उनमें से हीट पास आउट नहीं होती, ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके अंदर से, और मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस. नॉन मेटल्स में ज़्यादातर गैसेस हैं हमारे पास. अनदर प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज़ ब्रिटाइल. यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटाइल होते हैं, यानी दे ब्रेक ईजीली, सो दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल. यानी ये ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, इस वजह से ना ही वो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होती हैं. यानी इनको ना ही हम शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही नॉन मेटल्स को वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते. मेटलॉइड्स कैन हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? वो ये एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी. That is why they call metalloids, because they possess both characteristics of metals and non-metals. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है सिलिकॉन की. सिलिकॉन इज़ अ मेटलॉइड. सिलिकॉन इज़ अ ब्रिटाइल यानी इजीली ब्रेक हो जाता है लाइक अ नॉन मेटल, बट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ मेटल. लेकिन कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स की तरह. यानी इसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स हैं, मेटल के भी एंड नॉन मेटल के भी, मेटलॉइड्स के अंदर. सिलिकॉन इज़ फाउंड इन कंप्यूटर चिप्स, ग्लास एंड सैंड. यानी सिलिकॉन किसके अंदर हमें यूज़ करते हैं? कंप्यूटर चिप्स के अंदर भी सिलिकॉन यूज़ होता है, ग्लास के अंदर एंड सैंड के अंदर भी सिलिकॉन होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स आर they possess as both characters of metal and non-metal. Some of them are shiny and some of them are dull. Some are malleable and ductile, yani some metalloids can be converted into thin sheet and into wires. So some metalloids are malleable and ductile. Semiconductor of heat and electricity. Some of the metalloids can conduct heat and electricity, but they conduct at lesser level than metals. यानी जिस मिकदार में मेटल कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी उस मिकदार में ये नहीं करते, बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स. Metalloids are the element along on either side of that dark stair-step zigzag line you have seen in the figure. जो आपको ये फिगर के अंदर मेटलॉइड स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जो एक कर्व के अंदर रखे हुए हैं, ये जिगजैग वे में प्रेजेंट होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मेटलाइड्स की. ग्रुप 3 से है हमारे पास बोरोन, 4A से है हमारे पास मेटलॉइड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम,
And from 5A group we have metalloid, arsenic and antimony. And from 6A group we have tellurium and polonium from the group of 6A. And St9 of group 7A. These all are metalloids. Now we study about atomic radius or atomic radii. Half the distance between the nuclei of two atoms is the atomic radius, or the half the distance between the nuclei of two identical atoms joined in a molecule, or half the distance between the nuclei of adjacent atoms in solid matter. First of all, what is radius? Students, you have studied in your early classes that the radius, about radius. The distance between the center point and to the outer is called the radius. Now in atomic radius, the distance from the center of the nucleus to the valence electronic cloud is called as atomic radius. यानी वो डिस्टेंस जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो उसका इलेक्ट्रॉन जो उसके ऑर्बिट में आखिरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो रखता है उस तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। हम एक और तरीके से एटॉमिक रेडियस ले सकते हैं क्योंकि एटम का जो हमारे पास शेप है वो एक जैसी नहीं रहती, बिकॉज समटाइम दे फॉर्म मॉलिक्यूल, समटाइम दे फॉर्म आयन। तो हम एटॉमिक रेडियस को इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियर यानी दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है सिमिलर एटम्स के अंदर जो आपस में टच कर रहे हैं या बाउंड बना रहे हैं उसको भी हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। सो द एटॉमिक रेडियस इज ऑल्सो बी डिफाइंड एज half of the distance between two adjacent nuclei of two similar atoms in touch with each other is called atomic radius. Now the unit of atomic radius is angstrom. In a group, as we move from top to bottom, atomic size increases because of addition of an extra shell. यानी जब हम ग्रुप के अंदर मूव करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो एटॉमिक साइज़ जो होगा या एटॉमिक रेडियस जो होगा वो इंक्रीज़ होगा क्योंकि उसके जो एटम के जो शेल हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इन अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। अगर हम पीरियड के अंदर लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होगा बिकॉज टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज। क्यों होगा? क्योंकि डिक्रीज होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस चार्ट। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन अ ग्रुप बिकॉज देयर आर मोर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। To atomic radius decreases as you move to the right across a period because the nuclear charge increases and pulls the electron in closer to the nucleus. जैसे ही हम ग्रुप में मूव करेंगे नीचे की तरफ तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि जो एटम के शेल हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर हम पीरियड के अंदर लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी बढ़ रहे होंगे जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का वो ज़्यादा ताकत में अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दैट्स वाई जो रेडियस होगा वो छोटा होता रहेगा अगर हम मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। Ionization energy. What is ionization energy? An ionization energy is the energy required to remove one electron from an atom that makes an ion. What is an ionization energy? वो एनर्जी जो चाहिए होती है किसी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से निकालने के लिए उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और it also be defined as the minimum energy
required to remove an electron from a gaseous atom in its ground state is called ionization energy. The unit is kJ per mole, kilojoule per mole. Group trend: in a group, as we move from top to bottom, ionization energy decreases due to the इंक्रीजिंग अटोमिक साइज. अगर हम ग्रुप के अंदर मूव करेंगे टॉप से बॉटम की तरफ तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी बिकॉज जो अटोमिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है. दैट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज. As you move down a group, ionization energy decreases, and as you move left to right across a period, ionization energy increases. अगर हम पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. In a group, as we move from top to bottom, ionization energy decreases due to the increasing atomic size. जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी. क्यों डिक्रीज़ होगी स्टूडेंट्स? क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होगा. जैसे बात है, जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होगा तो एनर्जी क्या होगी? लेस लगेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एटम से. In a period, as we move from left to right, ionization increases due to the increasing atomic number और न्यूक्लियर चार्ज. अगर हम मूव करें पीरियड के अंदर लेफ़्ट से राइट की तरफ तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी. वाई इट विल बी इंक्रीज? इट विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन अटोमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि अटोमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इसी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी. जाहिर से बात है, एटॉमिक चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ज़्यादा ताकत लग रही है न्यूक्लियस से, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए उसके एटम से. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी: द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम. कह रहे हैं वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर ऐड किया जाता है या इम्पोज किया जाता है, या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल. एज वी मूव फ्रॉम अ टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज बिकॉज इंक्रीजिंग अटोमिक रेडियस. क्योंकि एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होगा, अटोमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा होगा, तो गेन ऑफ जो एनर्जी होगी वो कम लगेगी जब कोई इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा. और इन अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस. जैसे ही पीरियड के अंदर लेफ़्ट से राइट की तरफ हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी. High value of electron affinity means that atom have the tendency to gain an electron. यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर कितनी सलाहियत है वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर सके. गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. को जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है हम उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. Now, low value of electron affinity indicates that if it is difficult to introduce an electron in that atom, यानी जो लो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन की, यानी जो एटम की जो उसकी लो वैल्यू होगी कि वो गेन करे इलेक्ट्रॉन को, उसकी हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट. यानी वो एलिमेंट जिनकी सलाहियत कम होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. Now, electron affinity of different element. The electron affinity of fluorine is -333. The chlorine is -348. The electron affinity of bromine is -324,
and the electron affinity of iodine is -295. Electron affinity for the addition of first electron is negative, that is, energy is released, but for further addition of electrons it is positive because energy has to be added to overcome repulsion between negative ion and electron as shown in this equation. जब कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होती है, यानी वो जो एटम का है एलिमेंट का वो एनर्जी रिलीज़ करता है जब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन पहली बार जब वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है और वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन जो पहले से ही एटम जो आयन में हो, यानी जिसने पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है और वो नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके अंदर जब हम एक और इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वो जो चार्ज होगा हमें देगा, हमें एंडोथर्मिक एनर्जी होगी, यानी हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है गेन कर ले। जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है जो पहले से ही चार्ज है, तो जब हम इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन देंगे उसको तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो आपको पता है वो रिपल करता है, जो सेम एनर्जीज होती हैं एक दूसरे को धक्का देती हैं, दूर भेजती हैं अपनी इससे एक दूसरे को। तो जब हम ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो एनर्जी क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, और वो पॉजिटिव वे में लिखेंगे उसको हम। नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ बाउंड टू अट्रैक्ट शार्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, वो पावर जो एटम की होती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वो जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा की करे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यानी जब कोई मॉलिक्यूल बना हो और उसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो तो जो एटम जिसके अंदर ज़्यादा सलाहियत होती है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। Fluorine is the most electronegative element having the electronegativity 4, so it taken as standard. Cesium is the least electronegative element, 0.7. The electronegativity of cesium is 0.7. In a group, as we move from top to bottom, electronegativity decrease. जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ग्रुप के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ड्यू टू द इंक्रीजिंग शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक साइज। पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा इसका, इन अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज बिकॉज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। जब हम पीरियड के अंदर मूव करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ तो इंक्रीज़ होगा इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ा है और डिक्रीज़ हो रहा है एटॉमिक रेडियस। सो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द टेंडेंसी और पावर ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल to attract a shared pair of electrons toward itself is called electron negativity। जैसे यहाँ आपको मैंने दिखाया है इस पिक्चर के अंदर कि एक एटम है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ यानी जो पावर है जिस पावर से वो किसी एटम जो है दूसरे शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। So we can say that elements with high ionization energy and large electron affinity have high electronegativity. Variation of electronegativity with atomic number and the periodicity are shown in the figure. यानी अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तब ज़्यादा होगी जब आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हाई होगी एज शोन इन द फिगर।